Hello students, welcome to my channel. Let's study business at home. I hope you all are fine. Today we are going to discuss scientific management, which is given by Frederick Winslow Taylor, जिनको हम टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. ये चैप्टर आपके केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्यूल के मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा और उसको केस स्टडीज़ के थ्रू डिस्कस भी किया. इसी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट, in which we have some principles and the technique also, scientific techniques also, which are given by Taylor. But first of all, we will discuss about something related to Taylor. Frederick Winslow Taylor अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने 1883 में मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री ली थी. 1874 में अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम करते समय इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को जो फैक्ट्री लेवल पर वर्कर्स को फेस करनी पड़ती हैं उनको एनालाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया और 1884 में एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया इन मेडेवल स्टील कंपनी में. ये कंपनी 1898 में स्टील कंपनी बनी जो पहले आयरन कंपनी थी. आफ्टर दैट 1906 में इन्होंने टक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी एज अ प्रोफेसर वर्कआउट किया एंड 1906 टू 1907 अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर में भी एज अ प्रेसिडेंट वर्कआउट किया. Taylor is also known as father of scientific management. Why? While working in an apprentice machinist, he learned about the factory condition at grassroots level and used his experience to reshape the factory system of production to improve industrial efficiency. Taylor believed in the scientific approach in the work, not hit and trial method. He proved that business can be successful only if there is partnership of cooperation between management and its worker. Taylor introduced 4 principles of scientific management and 7 techniques to reshape the factory system of production to improve industrial efficiency. As you all know, students, Fioll gave principles related to the managerial level, but Taylor gave principles and techniques which are related to the factory or the workers of the factory. Generally, they want to do something for the workers and they analyzed or they observed that there are so many problems at the root level basically. If the workers are efficient in their work, then nobody can stop any company for the success. So basically, Taylor introduced 4 scientific principles which are very, very important for each and every worker and 7 टेक्निक्स. और ये वो टेक्निक्स हैं जो एक वर्कर को अपने काम को एफिशिएंटली करने में मदद करती हैं. खाली वर्कर को ही नहीं, एक सुपरवाइज़र को भी हेल्प करती हैं ताकि वो वर्कर की कंडीशन को समझ सके और उसकी हेल्प कर सके किसी भी काम को करने के लिए. बिफोर कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, I want to discuss with you what is scientific management basically. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Taylor ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी काम हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स उनका मानना था कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि किस काम को करने से क्या रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज अप्रोच इज़ साइंटिफिक एंड साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि वी कैन प्रिडिक्ट द रिज़ल्ट. तो अकॉर्डिंग टू टेलर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन कि ये हमें पता रहे व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ दैट. अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट
के थ्रू हम यही पता लगाते हैं कि आप चाहते क्या हैं कि आपके वर्कर किस तरीके से काम करें और बेस्ट मेथड क्या हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने का। Taylor introduced four scientific principles, that is science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. These are four scientific principles which are given by Froel. ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से प्रिंसिपल्स फ्रोल ने दिए हैं और कौन से टेलर ने दिए हैं। तो फ्रोल gave 14 principles or 14 managerial principles basically, but Taylor gave only 4 principles, 4 scientific principles for the factory or for the workers or for the operational level. Now we are going to discuss these 4 principles one by one. First, science not rule of thumb. Each job performed to the organization should be based on scientific inquiry and using scientific methods, not on intuition, experience and hit and trial method. टेलर का मानना था कि आप जो भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, आपको वो प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी कितनी एप्लीकेबिलिटी है उस मेथड की, उसको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस काम को करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशंस या हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ठीक है काम होगा तो हो जाएगा, आप इस तरीके से किसी भी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। टेलर मानते हैं कि वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू थिंक फर्स्ट what will be the result and then we have to perform the job. This method can be developed by thinking before doing, study and analysis, and by substituting rule of thumb throughout the organization. That means they have to substitute it, rule of thumb. That means जो भी इंस्टीट्यूशन है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या पुराने मेथड्स हैं, आप उनको अब के एनवायरनमेंट में कितना एप्लीकेबल हैं, कितना नहीं, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, उसको बिना अप्लाई किए नहीं आप उसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, ना कि पुरानी तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टेलर का मानना था इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी ट्रेडिशनल मेथड, so you have to analyze that method first. You have to go through the work study. Work study includes time study, fatigue study, that we will do later on, but we have to analyze the each and everything which is related to that method, and after that we should apply that method. Now in the present context, if we are talking about, in each and every organization internet is playing a very very important role, as we all know. और अभी भी हमारी क्लासेस सारी ऑनलाइन ही चल रही हैं। दैट मीन्स आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। एज वी ऑल नो दैट अभी ऑनलाइन मेथड इज़ मोर एप्लीकेबल, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड इन केस ऑफ दिस पेंडेमिक. So in the present context, the use of internet has brought about dramatic improvement in internal efficiency and customer satisfaction. It is very very important for each and every organization, whatever method you are using, whatever work you are doing, that should be scientifically analyzed. We are coming on the second one, that is harmony not discord. टेलर का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता तब होती है जब मैनेजमेंट और वर्कर मिलकर काम करें विद फुल हार्मनी. अकॉर्डिंग टू टेलर, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग्स मैनेजमेंट एंड वर्कर अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. देयरफॉर it is important that there is complete openness among management and employees. Taylor suggested that there should be complete harmony between management and workers. The class conflict helped none, the worker, the manager or factory owner. Both should realize that each one is important for the organization.
Both should be the part of the family in such a situation. Management should share the gain of the company with the workers. On the other hand, workers should work hard and with full efficiency, and trade unions should not think to going on strike for their demands. There should be the mutual, or there should be the harmony among the thinking of the workers as well as the management also. एक और चीज़ हमारी आती है माइंड में जब when we are talking about the two class conflicts, कि मैनेजमेंट हमेशा ये सोचती है कि वर्कर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड द वर्कर्स हमेशा क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमेशा हमें ओवरबर्डन करती है और उसके अकॉर्डिंग हमें वेजेस पे नहीं करती. ये जो नेगेटिव अप्रोच है टूवर्ड्स ईच अदर, दैट शुड बी इन द हार्मनी होनी चाहिए, दैट शुड बी निगलेक्टेड. इसको कम किया जाना चाहिए, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. एंड द चेंज ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर इज़ नोन एज द मेंटल रेवोल्यूशन. टेलर का मानना था कि दोनों मैनेजमेंट को भी और वर्कर को भी एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए, एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, ताकि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर. We are coming on the mental revolution. It is very, very important from an examination point of view also. What is mental revolution basically? Mental revolution involves a change in attitude of workers and management towards one another, from competition to cooperation. Competition ठीक है, मगर competition भी healthy होना चाहिए, and that should be in the cooperative manner, and both should realize that they require one another. We can take one example. Japanese culture is a classic example of a situation of harmony not discard. How? In Japanese companies, paternalized system of management is in practice. What does it mean? That means there is a complete openness between the management and the worker. If at all workers go on strike, they wear a black badge and more than normal working hours and they work more than normal working hours to basically gain the sympathy of the मैनेजमेंट. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि मैनेजमेंट को उन पर दया आ जाए और वो मैनेजमेंट वर्कर्स की बात को मान ले. वो कभी भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं कि स्ट्राइक का मतलब काम बंद कर देना. तो देयर शुड बी द हार्मनी. कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर, एंड कट एंड थ्रोट कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए. टेलर का मानना है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, ऑल द लेवल्स, दैट मीन्स वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होगी जो सक्सेसफुल ना हो. देयर शुड बी द हार्मनी एंड द कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर. दिस वॉज द सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, गिवन बाय टेलर. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. According to this, there should be the complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. As we all know that कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल रहकर अचीव नहीं कर सकती. मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एफर्ट, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी बेसिकली, एंड कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन एज वी ऑल नो इट. मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स आइज टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन. व्हाट डज इट मीन? एम्प्लॉयज़ जो भी सजेशन दे रहे हैं उन सजेशंस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और उस पर कोशिश करनी चाहिए कि उन अच्छे सजेशंस को माना जाए और अप्लाई किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और अच्छे सजेशंस के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी दिया जाए. अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मैनेजमेंट ऐसा करती है, दैट मीन्स दे आर वर्किंग इन द कोऑपरेटिव मैनर विद द वर्कर्स. मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अच्छे सजेशंस के लिए अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड्स दे. अगेन देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क and responsibility between the workers and the management. All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping them, encouraging them, and smoothing the way for them. That means it is very important for the management कि वो side by side worker के साथ रहे. ये नहीं कि काम दे दिया और फिर ख़त्म हो गया, they are coming only to see the result. नहीं, it is very important for the worker also कि आपके साथ management रहे, आपकी problems को solve out करे, आपको guidelines provide करे, आपको मोटिवेट करे. तो उससे क्या रहता है कि वर्कर्स को भी लगता है कि हाँ, मैनेजमेंट इज़ फॉर अस.
they are guiding us, they are giving instructions to us, they are solving problems for us, they are taking suggestions from us. तो cooperation will be more, teamwork develop होता है अगर हम cooperation की बात करते हैं तो. देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. इससे ना तो मैनेजमेंट के मन में कुछ नेगेटिव आता है और ना वर्कर्स के मन में कोई नेगेटिव आता है. तो दैट मीन्स सजेशन सिस्टम को मानना चाहिए ताकि कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके. दिस वॉज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ Taylor, cooperation, not individualism. Now we are coming on the last principle, that is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Now if you are reading this principle again तो you will come to know कि आप ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने हर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाए और उसकी हेल्प करे ताकि हर एम्प्लॉय अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम वर्क दे, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाए. उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को डेवलप करेंगे. नंबर 1, अगर आपको लगता है साइंटिफिकली आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू टेलर ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड. व्हाट डज इट मीन? किस काम को करने के लिए आपको किस स्किल, किस एक्सपीरियंस, किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि एम्प्लॉयज़ चाहिए, वही आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे. व्हेन यू आर असाइनिंग द जॉब या असाइनिंग सम work to the employee, you should know about the physical, mental and intellectual capability of the employee. If you want कि आपके वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो तो आपको अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू इंक्रीज देयर स्किल्स. This will ensure their greatest efficiency and prosperity for both company as well as the worker. तो again the company अपने resources को पूरा use कर पाएगी employees को after providing the training, and on the other hand workers will get motivated and worker will increase their efficiency and will do more and more better work for the ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उसको प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे एज वेल एज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे. आई होप कि आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे. आप इनकी नोट मेकिंग करेंगे और इसको एक बार वीडियो को और देखेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो. थैंक्स अ लॉट.